Hello, my dear students. We'll discuss today the digestive system of human beings. This is the lecture number 4. And in the previous classes, we had discussed what are life processes, and we had discussed what is nutrition. We had discussed the types of nutrition, and we had discussed the nutrition in human beings. That is what holozoic nutrition. We are the multicellular organisms, and we have complex body organization to perform the each life process in the efficient way. We have a well developed organ system or the body system to perform nutrition. We have digestive system. To perform respiration, we have respiratory system. To perform transportation, we have blood circulatory system. And to perform excretion, we have excretory system. आज हम डिस्कस करेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. तो हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स. इट इज़ न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन इट्स परफॉर्म बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. सो विल डिस्कस टुडे द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज द पिक्चर. इट शोज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. इसमें बहुत अच्छे से आपको शो किया हुआ है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होंगी, टंग होगा, ईसोफेगस होगा, लिवर होगा, स्टमक होगा, गॉल ब्लैडर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, लार्ज इंटेस्टाइन होगी और एनस होगा. सो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. विल डिस्कस the details of human digestive system. The human digestive system, it is made up of two parts: the alimentary canal, that is also known as digestive tract, that is also known as gut, and the digestive glands. हमारा एलिमेंटरी कैनाल है. It is 9 meter long. It starts from the mouth, then it continues the buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine and anus. हमारी एलिमेंटरी कैनाल के अंदर और साइड में लगी हुई है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स दे रिलीजेस द डाइजेस्टिव जूसेस. द डाइजेस्टिव जूसेस आर पुट इनटू द एलिमेंटरी कैनाल, एंड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स दे आर प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव जूसेस. द डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इन द एलिमेंटरी कैनाल. आई विल शो इट ऑन द स्लाइड कि एलिमेंटरी कैनाल के पार्ट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है. सो विल शो यू वन बाय वन दैट आवर एलिमेंटरी कैनाल इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. यहाँ से आप देखेंगे तो ये माउथ है. देन बकल केविटी, दिस पोर्शन इज बकल केविटी. देन pharynx, it is the common passage for food and air. Then esophagus, the food pipe. Then stomach, this is the organ which stores the food for the body. Then small intestine. Then जो green color में show किया हुआ ये large intestine है. And at last this is anus. तो ये हमारा elementary canal है. It is 9 meter long. इस एलिमेंटरी कैनाल के अंदर और साइड में लगी हुई है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, दे आर ऑफ 5 टाइप्स. आप देखते चले वन बाय वन. द सलाइवरी ग्लैंड्स, they are present in the buccal cavity.
Then gastric glands, they are present in the stomach. Then liver, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में है. Liver is the largest digestive gland. Then pancreas, this is the pancreas, it is the second largest digestive gland. Then intestinal glands, they are present in small intestine. My dear students, आपको बहुत अच्छे से शो किया हुआ है. The human digestive system, it is made up of two parts. The alimentary canal, alimentary canal के ये parts है. alimentary canal को यहाँ पे शो किया हुआ है. ये एक कैनाल है, जैसे एक नहर है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर 9 मीटर का लंबा एक रास्ता है. दिस इज नोन ए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. ट्रैक्ट मीन्स रास्ता, जहां पर डाइजेशन हो. सो दिस इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. इट्स अनदर नेम इज गट. इस एलिमेंटरी कैनाल के अंदर और साइड में लगी हुई है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दे आर ऑफ 5 टाइप्स. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दे रिलीजेस द digestive juices. The digestive juices are put into the alimentary canal, and with the help of digestive enzymes, they are present in the digestive juices. The digestion of food occurs in the alimentary canal. तो एक बार से फिर से आप ओवरव्यू ले पूरी स्लाइड का कि हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये कौन कौन से पार्ट्स का बना हुआ है, कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, एंड देयर इज द पिक्चर. प्लीज हैव अ व्यू. देन अब हम एक एक पार्ट की डिटेल्स डिस्कस करते हुए चलेंगे. आपको मोटे तौर पे शो कर दिया गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कौन कौन से पार्ट्स का बना हुआ है, वो आपके सामने है विद द पिक्चर. अब हम एक एक पार्ट को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते चलेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स, ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो. वही से रिपीट हो रहा है. द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, इट इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, द एलिमेंटरी कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. एलिमेंटरी कैनाल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ. और सामने पिक्चर शो कर रही है कि माउथ क्या है. ऐसा लग रहा है जैसे एक प्यारी सी लड़की वो हंस रही है. तो दिस इज एक्चुअली माउथ. माउथ क्या है? इट इज द ओपनिंग ऑफ एलिमेंटरी कैनाल. इट इज कंट्रोल्ड बाय 2 मूवेबल लिप्स. मतलब दांत, ये दांत दिख रहे हैं, इन दांतों के आगे और ओंठों के पीछे, दैट इज एलिमेंटरी कैनाल. दिस वन, it is just the opening of alimentary canal. It is just the opening of alimentary canal. This is the opening of alimentary canal. This is just mouth. Nobody is going to ask you what is mouth, but ये है कि माउथ एक पार्ट है, तो हमें एक्सप्लेन करना जरूरी था. और माउथ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ताकि आप अगर पढ़ते पढ़ते बोर भी हो गए तो इस स्माइल को देख के आपके फेस पे एक अच्छी स्माइल आ जाएगी, हंसी आ जाएगी. द नेक्स्ट पार्ट, बकल केविटी. अब इसने मुंह फाड़ दिया है कि सर अभी तो आपने अच्छे से स्माइल दी थी, अभी फाड़ा हुआ सा मुंह खड़ा कर दिया है. तो जैसी जो पार्ट है उसको उस तरह से शो करना ज़रूरी है. और जो भी टीचिंग है वो एक नेचुरल फॉर्म में आनी चाहिए, ताकि आपको ये नहीं हो कि हाँ सर ने वीडियोज़ है वो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर दिए हैं तो हमें रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं. क्लासरूम के अंदर 2-4 बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो मैं उधर भी देख रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि एक नेचुरल एसेंस आए टीचिंग के अंदर. दिस इज व्हाट द बकल केविटी.
The buccal cavity, it contains teeth and tongue. This is what, these are the teeth and this is what the tongue. 10th क्लास के अंदर this is enough कि buccal cavity क्या है, but अपनी जो क्लासेस है वहाँ पर हमें 10th क्लास का सिलेबस कराने के साथ साथ में फाउंडेशन कोर्सेज भी करवाने हैं. द सांकला क्लासेस इज रनिंग इन करनाल फॉर द लास्ट 20 years. और यहाँ पर द एकेडमी इज फेमस फॉर दिस वन कि बच्चों को ओनली टेक्स्ट ना करवा के उनका कंटेंट इस लेवल पे तैयार करवाया जाता है ताकि वो बच्चे हैं +1 +2 के अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल लें तो उनको उन सब्जेक्ट्स को तैयार करने में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए. तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा चलूंगा दैट कवर्स योर फाउंडेशन कोर्सेज. द बकल कैविटी इट कंटेन्स द टीथ एंड द tongue, and this is what the tongue and these were the teeth. अब देखें बेटे डायग्राम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हार्ड पैलेट मतलब हमारी बकल कैविटी का जो आगे वाला हिस्सा है दैट इज हार्ड पैलेट. आप अंगुली लगा के अगर चेक करेंगे तो आगे की ओर थोड़ा सा पोर्शन हार्ड होता है दैट इज हार्ड पैलेट. और पीछे की तरफ आप अंगुली को करेंगे तो देर इज सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पार्ट होगा. और मुंह को खोल के आप ड्रेसिंग के सामने खड़े हो, अपना पूरा मुंह खोलो इसी की तरह तो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. दिस इज ऊवुला. एंड साइड में जीभ के साइड में यहाँ पर टॉन्सिल्स होते हैं. सो दिस इज व्हाट द बकल कैविटी. बकल कैविटी इट कंटेन टीथ एंड टंग. तो विल गो इन द डिटेल्स ऑफ बकल कैविटी. The buccal cavity it contains teeth and tongue. तो आप देखें कि ये दांत दिखा रखे हैं and teeth है. There are 4 types: the incisors, canines, premolars and molars. ये नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर मैं आपको इसके डिटेल्स बताऊंगा कि इंसिजर्स क्या है, कैनाइंस क्या है, प्रीमोलर्स क्या है, मोलर्स क्या है. They are the types of teeth. Then tongue. ये टंग को शो किया हुआ है. थोड़ा हमने कलरफुल इसको इसलिए बना दिया है ताकि आपको ये पता हो कि जीभ का कौन सा पार्ट है किस फूड को टेस्ट करता है. तो जीभ का आगे वाला पार्ट है वो स्वीटनेस को, जैसे आपको देखना है कि ये मीठा है या खट्टा है, मीठा है या सॉल्टी है, तो उसकी टेस्ट बड्स है वो आगे की ओर होंगी. इट इज स्वीट एंड सॉल्टी, उसकी टेस्ट बड्स यहाँ पर होंगी. हम नींबू वगैरह चूसते हैं तो कुछ खट्टा है तो उसके लिए यूँ करते हैं, उसकी टेस्ट बड्स साइड में होंगी. और कुछ कड़वी चीज़ खा ली यूँ करते हैं तो उसकी टेस्ट बड्स बिल्कुल जीभ पे अंदर की ओर, बिटरनेस की टेस्ट बड्स वो पीछे होंगी. सो और बकल कैविटी इट कंटेन्स टीथ एंड टंग. नाउ विल गो इनटू द डिटेल्स. टीथ की डिटेल्स में जाएंगे, टंग की डिटेल्स में जाएंगे. नाउ टाइप्स ऑफ टीथ. तो आई विल शो यू बाय द स्लाइड्स वन बाय वन कि 4 तरह के दांत हैं. इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. और 1 बाय 1 आपको मैं शो करता चल रहा हूं. पहला है इंसिजर्स. इंसिजर्स ये आगे वाले दांत. इट इज यूज्ड फॉर कटिंग. दिस इज यूज्ड फॉर कटिंग. झगड़ा होता है 2 बच्चों के, पकड़ के यूं काट देते हैं तो दे आर यूज्ड फॉर कटिंग. ये दांत नहीं बेटा, ये रूट है. दांत ये ऊपर वाला है. आप देखें ये वाले दांत. दिस इज व्हाट द इंसिजर्स. देन कैनाइंस थोड़ा नुकीला होगा, ये वाला दांत. देन प्रीमोलर्स जिसको हम दाढ़ बोलते हैं. और मोलर्स, मोलर्स भी दाढ़ हैं, पीछे वाली दाढ़. तो ये 4 तरह के दांत हैं. अब मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूं
डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूले से आपको ये पता चल जाएगा कि हमारे दूध के दांत कितने होते हैं और परमानेंट टीथ कितने होते हैं। इन ह्यूमन बींग्स हमारे लाइफ के अंदर दो तरह के दांत आते हैं, एक दूध के दांत और जो इस समय परमानेंट टीथ है वो है अब के दांत। इसीलिए बोलता है कि ह्यूमन बींग्स आर डायाफायोडोंट, दे आर डायाफायोडोंट, दे आर डायाफायोडोंट, डायाफायोडोंट। मतलब हमारे जीवन में दो तरह के दांत आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो इसको कंडीशन को बोलेंगे डायाफायोडोंट। We have four types of teeth: incisors, canines, premolars and molars. We have different types of teeth. That is, this is heterodont. क्या कहेंगे इसको? Heterodont. This is heterodont. It is heterodont. Now we'll discuss the dental formula. ये आपको मिल्क टीथ का फॉर्मूला शो किया हुआ है और ये आपको जो फॉर्मूला शो किया हुआ है हमारी आधी बॉडी का शो किया हुआ है। वी आर द ह्यूमन बींग्स, वी हैव बाइलेटरल सिमेट्री, कि अगर हमारे बॉडी को एक वर्टिकल पार्ट से काटेंगे तो बॉडी डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ्स, हाफ का प्लूरल हाफ्स। अगर हमारी बॉडी को यहां से सेंटर से यूं काटेंगे तो बॉडी के दो इक्वल पार्ट बन जाएंगे, एक हाथ इधर चला जाएगा, एक हाथ इधर चले जाएगा, जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होंगी। तो मैं आपको जो डेंटल फॉर्मूला बता रहा हूं उसमें क्या कर रहे हैं कि बॉडी का जो एक पार्ट है, हाफ पार्ट है, उसके ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़ों में कितने दांत है वो कैलकुलेट करूंगा और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बॉडी के कंप्लीट दांत आ जाएंगे। तो दैट आई एम गोइंग टू शो यू। तो ये है मिल्क टीथ। मिल्क टीथ दे आर ऑल्सो नोन एज डेसिडुअस टीथ। इनको डेसिडुअस टीथ इसलिए बोला है कि जो दूध के दांत है 1 बाय 1 झड़ते रहते हैं और परमानेंट टीथ आते रहते हैं, इसीलिए इनको बोला डेसिडुअस टीथ। जैसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट आर दोज फॉरेस्ट जो अपनी ओल्ड लीव्स को गिराते रहते हैं और न्यू लीव्स आती रहती है। उसी तरह से हमारे जो दूध के दांत है वो 1 बाय 1 निकलते रहते हैं और नए दांत परमानेंट टीथ आते रहते हैं, इसीलिए बोला है इसको डेसिडुअस टीथ। तो अपर हाफ जो एंड लोअर हाफ जो, इंसिजर्स 2 बाय 2 मतलब 2 ऊपर 2 नीचे, यहां से हमारे बायलेटरल सिमेट्री शुरू होती है। ये हमारा कैनाइन है। अब आप देखें यहां पे 2 दांत हैं, तो इंसिजर्स 2 ऊपर होंगे 2 नीचे होंगे। तो इंसिजर्स 2 बाय 2, कैनाइन्स 1 बाय 1। ये नुकीला दांत है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। इंसिजर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि दे आर यूज्ड फॉर कटिंग, और कैनाइन दे आर यूज्ड फॉर कटिंग एज वेल एज टीयरिंग। लॉइन का कैनाइन बहुत मजबूत होता है, लॉइन इसीलिए अपने शिकार को चीर देता है। आप जैसे अगर अपने इंसिजर से गन्ने को अगर छीलोगे, गन्ने को चूसने की कोशिश करोगे, ये दांत बाहर आ जाएंगे। ये दांत इतने मजबूत नहीं है, लेकिन ये जो कैनाइन है कैनाइन मजबूत होगा, कैनाइन से हम छील सकते हैं। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स जो दाढ़ होती है, दे आर यूज्ड फॉर च्यूइंग, मैस्टिकेशन एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। प्रीमोलर 0 बाय 0, दूध के दांत में प्रीमोलर्स नहीं होते हैं, एंड मोलर्स इट इज 2 बाय 2। ये थोड़ा स्लाइड में बेटा गलत शो हुआ है, तो दिस इज व्हाट इट इज 2 बाय 2। इसको काट के आप सही कर दें, इट इज 2 बाय 2। तो हमारे ऊपर दांत हो गए 2, 1 3 और 2 5, 5 दांत ऊपर है 5 नीचे हैं, टोटल दांत हो गए 10। मतलब एक बॉडी के एक हाफ पार्ट के अंदर 10 दांत होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मिल्क टीथ हो गए हैं 20।
And now we'll discuss the permanent teeth. The permanent teeth, they are also known as successional teeth. They are known as successional teeth because they comes in succession. कि दूध के दांत उतरते जाएंगे और परमानेंट टीथ वन बाय वन आते जाएंगे, इसीलिए उनको बोला सक्सेशनल टीथ. दिस इज द डेंटल फॉर्मूला फॉर परमानेंट टीथ. तो अपर हाफ जो एंड लोअर हाफ जो. अपर हाफ जो में होगा इंसिजर्स ऊपर, दो ऊपर होंगे, दो नीचे. कैनाइंस वन बाय वन. प्रीमोलर्स टू बाय टू. प्रीमोलर्स मिल्क टीथ में नहीं थे बट परमानेंट टीथ में आ गए हैं. और मोलर्स 3/3, 3 ऊपर 3 नीचे. अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे. तो देखिए बेटा, इधर 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 3 8. 8 दांत ऊपर होंगे, 8 नीचे होंगे. ये हो गए 16 दांत हो गए हैं. 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 32. सो द परमानेंट टीथ आर 32 इन नंबर. आप 10th क्लास में हैं, आपके दांत 32 नहीं होंगे, आपके दांत 20 और 28 है, क्योंकि आप दिन भर स्कूल में जाते हैं, झगड़ते रहते हैं, यार दोस्तों से अपने दांत तोड़ा लिए होंगे, तो इसलिए आपके 4 दांत कम हैं. अभी आपके जो दांत हैं वो 28 हैं. अब ये तो है नहीं कि हर बच्चे ने झगड़ा किया होगा, दांत तोड़ा लिए होंगे. बात ये है कि तुम्हारे में अक्ल की कमी है. तुम्हारे में अक्ल तब आएगी जब आपको अक्ल की दाढ़ आ जाएगी. दैट इज व्हाट विजडम टीथ. अब तुम सोच रहे हो कि आप पढ़ा रहे हो या मैं गालियां दे रहे हो. मैं एक्चुअली तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा पढ़ाने का स्टाइल है. तो अभी आपके अंदर अक्ल की दाढ़ नहीं है ये, और अक्ल की दाढ़ जब आ जाएगी तब अक्ल भी आ जाएगी. तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा किसी ईयर, ये आपको बोलना नहीं पड़ेगा. जब अक्ल आ जाएगी खुद सुनेंगे कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है. सो दिस इज ऑल अबाउट द डेंटल फॉर्मूला. Now we'll show you the next slide. Tongue and its functions. हमारा टॉपिक चल रहा था that the buccal cavity, it contains the teeth and the tongue. Teeth 4 तरह के हैं. इंसिजर्स है, कैनाइंस है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स हैं, और जिसका हम डिटेल्स डिस्कस कर चुके हैं. एंड दांतों के अलावा टीथ, द बकल केविटी, इट कंटेन्स द टीथ एंड द टंग. द टंग इज दिस वन. ये हमारा टंग है. इट इज अ हाईली मस्कुलर ऑर्गन. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द टंग? It brings the food under the teeth, helps in chewing of the food or the mastication of the food. हम खाने को चबाते हैं तो इस तरह से चलाते हैं. जीभ एक बार लेफ्ट की ओर जाती है, एक बार राइट की ओर जाती है. एक बार वो खाने को लेफ्ट की ओर भेजती है, एक बार वो राइट की ओर भेजती है. बिना जीभ के आप खाने को नहीं चबा सकते. अगर आपकी जीभ को बांध दे और आपको कहे जीभ को नीचे चिपका दे टेप से और आपको अंदर खाना डाले, कहे चबाओ, बाहर आ जाएगा. दिस टंग मेक यू द चटोरा बिकॉज इट कंटेन्स द वेरियस टेस्ट बर्ड्स. ये स्वीटनेस के लिए है, सॉल्टी के लिए है, सॉर के लिए है और बिटर के लिए है. आपको कुछ नमक दिया या चीनी दी, देखना बेटा ये मीठा है या सॉल्टी है. हाँ मम्मी ये तो मीठा है, हाँ मम्मी ये तो सॉल्टी है. तो स्वीटनेस और सॉल्टी, इसको टेस्ट करने वाली जो टेस्ट बर्ड्स है हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से पे होंगी. हाँ कुछ नींबू चूस लिया, यूँ करते हैं. तो जो खट्टे की जो टेस्ट बर्ड्स है, सॉर की जो टेस्ट बर्ड्स है वो साइड में होंगी. कुछ कड़वी चीज खा गए, नीम के पत्ते तो उसकी जो टेस्ट बर्ड्स है वो यहां पर है. सो इट कंटेन्स द टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द टेस्ट ऑफ द फूड एंड टाइप ऑफ द फूड. तीसरी बात, इट क्लीन्स द बकल केविटी.
आपका बकल केविटी आपका घर है और इसमें काम करने वाले जो शांतिबाई है वो टंग है। आपने कुछ मीठा खा लिया, चॉकलेट खा लिया और आके क्लास में बैठ के क्लास शुरू हो गई, फिर कैसे करते हैं? करते हो ना? खाते क्यों? तो इट क्लीन्स द बकल केविटी। Point 4, it helps in the production of meaningful sound. The sound is produced by the sound box and that is what larynx. The larynx is the sound box. Sound है वो larynx से produce होगी, but the sound become meaningful with the help of tongue. अभी मैं बोल रहा हूं साहिल, the sound is clear, it is meaningful because of tongue. The sound is produced by the larynx, it is becoming meaningful with the help of tongue. अब मैं मान लो मेरी जीभ को बांध दूं और फिर बोलूं साहिल, है the sound is no longer the meaningful. तो ये हमारा हुआ टीथ एंड टंग, और थोड़ा फाउंडेशन पार्ट में मैं कुछ टीथ पे भी और थोड़ा डिस्कस कर दूं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे दांतों का, दिस इज द फाउंडेशन पार्ट, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर 10th सिलेबस, बट पता होना चाहिए कि दांतों का जो अपर शाइनिंग सब्सटेंस है वो है टूथ इनेमल, दैट इज टूथ enamel, and this is made up of calcium phosphate. This is made up of calcium phosphate. This is the hardest substance present in our body. This is the hardest substance present in our body. Which is the hardest substance present in our body? It is calcium phosphate. और इसको जो टूथ इनेमल है, इसको अच्छा मेंटेन करने के लिए जो पीएच वैल्यू है वो लगभग 7 होनी चाहिए। मैं जनरल साइंस का टीचर हूं, बायो चल रही है, केमिस्ट्री का जो पार्ट डिस्कस कराना है तो मैं यहीं पे आपको लिंक कर रहा हूं। पीएच से हम पता करते हैं कि वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और वेदर द सब्सटेंस इज बेसिक। pH एक्चुअली होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस और ए सॉल्यूशन। अगर pH वैल्यू 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से नीचा है तो एसिडिक है, 7 से ऊपर है तो वो बेसिक है। हम वी टेक स्वीट्स एंड चॉकलेट्स, वी टेक फूड पार्टिकल्स है, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स है, हमारे दांतों के अंदर बकल केविटी के अंदर उलझ जाते हैं। बाय द बैक्टीरियल एक्शन द एसिड्स आर फॉर्म, और एसिड्स बनने से हमारे मुंह में खट्टी खट्टी स्मेल आने लगती है, बिकॉज एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, जो भी मैंने आपको टेस्ट वर्ड्स में बताया है। नाउ हम क्या करते हैं, वी डू टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कंटेन्स द बेसिक सब्सटेंस, द बेस रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म ए सॉल्ट, जिसका पीएच होता 7 एंड वी हैव अ फ्रेश ब्रीथ। तो इसलिए हमें 2 टाइम्स ब्रश करना चाहिए। कुछ लोग नीम का दातुन करते हैं, बबूल का दातुन करते हैं, पुराने जमाने से करते आ रहे हैं। पुराने जमाने के जो लोग हैं उनका प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे से बेटर था। ये जो नीम है, बबूल है, दे आर द बेसिक सब्सटेंसेस। तो जो बेसिक सब्सटेंस होगा दैट रिएक्ट्स विद एसिड एंड फॉर्म ए सॉल्ट, और पीएच वैल्यू 7 मेंटेन रहेगी, तो यू विल हैव अ फ्रेश ब्रीथ। आजकल बच्चे हैं, आज का कल्चर है लेट नाइट सोना, बच्चे हैं सुबह स्कूल टाइम पे उठ नहीं पाते हैं, पेरेंट्स उठाते रहते हैं, बच्चा उठेगा जल्दी से मुंह धोया स्कूल चला जाएगा, ब्रश करेगा नहीं, ब्रश संडे को करेगा। 7 दिन तक बच्चा अगर ब्रश नहीं करेगा तो बैक्टीरियल एक्शन से बकल केविटी के अंदर एसिड्स बनते जाएंगे। पीएच वैल्यू अगर 5.5 से नीचे चली जाएगी तो टूथ कोरोजन स्टार्ट्स। सो बिलो pH 5.5 the tooth corrosion starts.
टूथ कोरोजन स्टार्ट्स, दांत झड़ने लगेंगे। इसलिए हमारी ओरल कैविटी का केयर करनी है तो हमें रेगुलरली ब्रश करना चाहिए। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेशंस थी और दिस इज़ ऑल अबाउट आपका जो टॉपिक है दैट इज़ बकल कैविटी। इट इज़ ओवर। टंग का हम डिस्कस कर ही चुके हैं और बेटा ये एकेडमी की डिटेल्स हैं। आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो यूट्यूब पर सांकला क्लासेस का चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करें और ये हमारा ईमेल आईडी है। एकेडमी के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे आप यहाँ पर जा सकते हैं। यू कैन सी ऑन द फेसबुक। सो दीज ऑल आर द डिटेल्स। थैंक यू।